Well, let's get you the latest on the ugly and dramatic incident that took place overnight at the wrestlers' protest in Delhi. Ace wrestlers who were holding a protest at Delhi's Jantar Mantar have now alleged that a group of drunk Delhi police personnel targeted them late in the evening when they wanted to bring in mattresses and beds to sleep at night after the day-long rains in Delhi. That's right, absolutely shocking visuals there. The policemen allegedly beat them up and abused the women wrestlers. That's what was alleged by the wrestlers. Several grapplers were hit on the head and two of them sustained injuries even. One person who fell unconscious had to be taken to the hospital. In an official statement, the Delhi police, however, said a minor altercation took place in which Aam Aadmi Party leader Somnath Bharti, along with two others, was detained. He was apparently getting beds for the wrestlers to sleep at night, given the rain that took place in Delhi. That's right. In fact, the wrestlers have been protesting for over 10 days and there's a second round of protests. However, such violence is the first for Jantar Mantar, the designated protest site of the national capital. Right, and Congress leader Dipinder Hooda was also prevented by the police from arriving at the spot. There you can see the visuals showing that the wrestlers are arguing with the cops, many on camera, and the policemen who allegedly targeted them. One of the wrestlers even fainted, and one who was injured is identified as Rahul Rao. Vinesh Fogart hit out at the violence. After that, the wrestlers spoke out against what took place. ये दिन देखने के लिए मेडल लेके आए थे देश के लिए, यही दिन देखने के लिए लेके आए थे। मैं पूछ रही हूँ, सबसे पूछ रही हूँ, वो ब्रजभूषण जो इतने कांड कर रहा है, वो घर में मजे से सो रहा है बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो जो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बन रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वक्ती सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए तैयार है। इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है। इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आने, तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी करेगी हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। कितने लोग इंजर्ड हुए आप लोग के साथ? दो को, एक को तो इधर से पटा हुआ, उसका तो खून ही बहुत ज्यादा चलने लगा, तभी हमने भगा दिया। भाई को ये भाई बैठा हुआ है, इसको टकरा रहे हैं, इसको जाने नहीं दे रहे हैं। गद्दे पे हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि लेके आओ, आज ये सब गिल्ले हो गए। कहाँ पे सोए आप लोग हमें जवाब दे दो, कहाँ पे सोए हम? जिन पुलिस कर्मियों ने आपके साथ बदतमीजी की उनके खिलाफ शिकायत देंगे आप लिखित में भी? हम तैयार है मरने के लिए, हम बिल्कुल तैयार है। आरोपी को ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए, औरतों की इज्जत ना हो, हमें नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी भाई। उसी पे गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैं सभी देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, अगर हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है तो इस देश में कौन सुरक्षित है? ब्रजभूषण जैसे लोग जो क्राइम करके भी खुले में घूम रहे हैं और ये यहाँ पे ऐसे रोना पड़ रहा है रात को बिना खाए पिए कुछ। तो सभी से अपील है, सुबह तक दिल्ली पहुंच जाओ आप लोग, अगर आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचानी है तो। ये जो जंतर मंतर पर अभी हुआ है, ये बहुत गलत है। पूरे दिन आज बारिश हुई, जंतर मंतर पर बैठी हुई हमारी देश की पहलवान, जिन्होंने देश के लिए मेडल जीते, पूरी दुनिया में तिरंगे को ऊंचा किया, आज बारिश होने के बाद अगर जंतर मंतर पर कीचड़ है तो पुलिस कह रही है कि आप कीचड़ में सोइए। हमारे घरों की बहन बेटियां बीच सड़क पर कीचड़ में कैसे सो सकती हैं? किसकी बहन बेटियां कीचड़ में सो सकती हैं? Well, let's go across to NDTV's Vimal, who joins us from Jantar Mantar. Vimal, what is the situation this morning, and very disturbing scenes that took place last night? Terrible to see, the wrestlers in tears. Yeah, you can see, the police has cordoned the whole area and is completely sealed off. And from 200 meters from here, the wrestlers are protesting, and there is you can see the heavy deployment of police. I would say that police is doing what they should have done much earlier, and of course there is
there is a security concern, and I'm joined by Ravish Ranjan Shukla also, who has been covering the restless protest. Ravish, कल हम लोग रात में इससे बातचीत कर रहे थे और आप भी लगातार इस पे खबर कर रहे थे. कल भी आप जब पीटी उषा आई वहाँ पे थे. आपको लगता है सिक्योरिटी सिस्टम, कल आपके जो सोमनाथ भारती हैं उन्होंने बयान भी दिया कि वो कॉट लेकर आए थे और पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की थी और ये अलाउड नहीं था. एक जो बयान मेरी जो बजरंग से बातचीत, बजरंग ने जो बयान दिया कि वो अलग सोर्सेज से कॉट लाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि सिक्योरिटी सिस्टम जो होना चाहिए था वो नहीं रहा? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी सिस्टम में, सुरक्षा में खामी रह गई, जिसकी वजह से इस तरीके की शर्मनाक तस्वीर हमको देखनी पड़ी. लेकिन कल विमल जी दिन भर बारिश हुई थी और हमने देखा था खुद की तंबू जो उनका था, नीचे सोते, हाँ वो भी भीग गया था, नीचे जहाँ वो भी भीग गया था. तो उनको एक ज़रूरत थी, कोशिश ये होनी चाहिए थी कि आपस में बातचीत करके पहले ही एक व्यवस्था अरेंजमेंट करना चाहिए. लेकिन पुलिस की तरफ से, पहलवानों के तो अपने बयान है, अपने आरोप है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब परमिशन दी जाती है तो बाकायदा क्या सामान आना है क्या नहीं, उसको सिक्योरिटी चेक किया जाता है. तो कल जब अचानक एकदम से इतनी सारी खाट यहाँ पर आने लगी, हाँ, तो पुलिस का ये कहना था कि उन्होंने सिक्योरिटी एक चेकअप के लिए पूछताछ की और उसी में जो है वो आपस में झगड़ा हो गया. और उस दौरान झड़प भी हुई है, एक दो पहलवान को चोटें. हाँ बिल्कुल, बहुत तीखी बहस हुई, उसके बाद में धक्का मुक्की हुई और धक्का मुक्की में इस तरीके का जो बैरिकेड लगा है उसमें एक सर टकराया एक पहलवान का और उसके बाद चोट लग गई, एक दूसरे शख्स को भी चोट लगी है. तो अब देखना होगा, आज चूंकि आज सुबह से तमाम सारे सियासी नेताओं के बयान आए हैं, जयंत चौधरी भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं और भी तमाम सारे नेताओं ने कहा है कि वो पहलवानों को देखने के लिए आएंगे. यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जंतर मंतर पर इतनी दूर हम लोगों को खड़ा कर. आरएलडी के कुछ कार्यकर्ताओं से मेरी, रविश आपने किसान आंदोलन भी कवर किया है और वहाँ पे इससे कहीं ज्यादा लोग थे. आपको नहीं लगता है कि जो इतने कम पहलवान हैं, इस तरह का मसला अगर आप पहले चाहते हैं, और आपको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, तो ये पहले रोका जा सकता था? बिल्कुल पहले रोका जा सकता था कहीं ना कहीं. और रात के वक्त जंतर मंतर पर वैसे भी अंधेरा रहता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बिजली का बंदोबस्त नहीं है. कल हमने देखा कि लाइट भी शॉर्ट सर्किट की वजह से चली गई थी. तो पुलिस को कोशिश ये करनी चाहिए थी कि और ज़्यादा, जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे रखे हैं कि आप इनकी सुरक्षा को मजबूत करिए, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा में भी खामी है और इस तरीके का वाकया नहीं होना चाहिए कि पहलवान सड़क पर रोते हुए दिखें कि उनके साथ में बदतमीजी हो रही है. निश्चित तौर पर पुलिस का ये कहना है कि इस मामले की वो जांच भी करेंगे कि आखिर इसमें कहाँ पर दिक्कत रह गई और अगर कोई इसमें दोषी है तो उसके ऊपर में कार्रवाई भी होगी. लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक तस्वीर है कि राजधानी की सड़क पर इस तरीके से, जब आप यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस भी रहती है, दिल्ली पुलिस भी रहती है, 2 लेयर सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है और ऐसे में ये वाकया जो है वो होना पहलवानों के साथ में बहुत अफसोसनाक है.